Okay, let me quickly recall it so that, so you see now we are doing the work done, right? So work done is nothing but the physical implementation, physical interpretation of the line integral जो हमने पीछे देखा है. So अगर मेरे पास कोई force F है and force F is acting at a point P on the curve from A to B. So अगर मुझे work done निकालना है from A to B, so this is the point P, this is F. तो ये basically this is nothing but जो force लगेगी in the direction of AB. So जब मैं direction of AB की बात करती हूँ, so that is nothing but the tangent. So the component of F in the direction of tangent. So F dot T ds A to B. So ये integral हम already solve कर चुके हैं. This integral is nothing but F dot dr. So this integral, integral A to B F dot dr, this is known as the work done. Further अगर आप देखो, अगर ये integral, it is independent of the path. अगर मैं आपको पैराबोला दूं तो भी आंसर सेम आ रहा है, सर्कल दूं तो भी आंसर सेम आ रहा है, लाइन दूं तो भी आंसर सेम आ रहा है, then this work is known as the force is known as the conservative force or the conservative field. Further अगर ये आपकी C जो curve है, that is the closed curve, then this quantity F dot dr along C is also known as circulation of F along C. So इनको solve करने की टेक्निक आपकी सेम रहेगी जैसे पहले है. अगर आपको ये, if in this question force is given, you have to calculate work done from 0 1 to 1 1 along the parabola. So work done हमें पता क्या होता है, A to B F dot dr. R is what? R is xi cap plus yj cap. चॉइस आपकी है, आप टी में पुट कर दो, एक्स को टी ले लो तो आप वाई को टी ले लो तो एक्स टी स्क्वायर आ जाएगा. बेटा सब्स्टिट्यूशन ऐसे लेनी है कि अंडर रूट को अवॉइड करो, गलती होने के चांसेस नहीं होते फिर. सो वाई को टी ले लो तो एक्स कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर. तो आपके पास फोर्स आ गया, राइट. सो और डायरेक्टली भी आप वाई को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, so we can put x is equal to y square, further 2y dy is equal to dx, so whole of the integral will change in y and we can calculate the work done. Similarly, if you see second question, we have to find the circulation of F around the curve C, where F is this, just तो बेटा अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सर्कुलेशन निकालनी है ऑफ F around the curve C, where C is a circle. So again, so circulation that is nothing but F dot dr. So F is given, dr is given. अब अगर आप यहाँ पे देखो Z is 0, so this is a closed curve, this is circle. So what you can do, you can change everything to polar coordinates. So this is circle of radius 1. So x is equal to cos theta, y is equal to sin theta. थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 to 2 pi. तो ये देखो, ये हमेशा बेटा पहले फर्स्ट स्टेप इज वैल्यूज डाल लो पहले. इंटीग्रल फ्रॉम सी एफ, एफ कितना है आपका, वाई आई कैप प्लस जे जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप. अब जेड इज 0, so r will be what, r is x I cap plus y j cap, पोजीशन वेक्टर. तो dr कितना हो जाएगा, dx I cap plus dy j cap. तो जब आप f dot dr ले लोगे तो f dot dr कितना आ जाएगा, I के साथ I कंपोनेंट, so y into dx plus z into dy. But हमें तो again we are given z is 0, so this will only become y dx. Beta, is it fine? Beta, is it fine? Yes, ma'am. Because z is 0. So you see y dx. तो अभी क्या है, मिक्स्ड वेरिएबल है, तो या तो अंडर रूट में चले जाओ, फिर अगर आपको अंडर रूट के वो इंटीग्रल वाले फॉर्मूलाज याद है फिर उसको यूज कर लो. अदरवाइज आई नो x is what cos theta, y is what sin theta. So यहाँ से dx कितना आ गया, dx is how much, dx is minus sin theta, dy is cos theta. So we can put all these values. So y की वैल्यू sin theta पुट कर दी, यहाँ पे d theta भी आ जाएगा, and dx की वैल्यू minus sin theta d theta पुट कर दी, and theta की लिमिट is 0 to 2 pi. You can integrate and we can get the circulation. Is it clear बच्चे, all of you? बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉसिबल है बेटा? मैंने कहा होने पटवा लिया है कर देना तुम बड़ा जी मार्जिन पे है ये होने भी कुछ 200 रुपए हैगा बेटा स्क्रीन तो मैं 2000 पे जो 800 रुपए जमा करा 2000 में
बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को। All right. So now this was about the line integral. So as I told you कि अगर आपके पास कोई कप है, so अगर आप इस कप की ये जो एजेस मैंने बनाई है रेड कलर में, so these are curves. अब अगर आप इस कप की सरफेस के ऊपर चले जाओ, means the कप की आउटर लेयर, so that is the surface. और अगर आप कप के अंदर चले जाओ, तो जो कप के अंदर चाय आती है, that is the volume. So अभी तक आपको सिर्फ जो छोटी क्लासेस में हम इंटीग्रेशन कराई थी वो अराउंड द एक्स एक्सिस कराई थी, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स. सो वहां पे dx का मतलब क्या था, चेंज इन x. सो ओनली सिंगल वेरिएबल. चेंज इन x का मतलब क्या हो गया, वी हैव x एक्सिस, सो वी वाज हैविंग स्ट्रेट लाइन. बट इन जनरल it is not, we can integrate any given function with respect to any given curve, any given surface or any given volume. अभी आपने देखा कि हमें जब हम कर्व की बात करते हैं, then we are into one variable, one dimension, so one integral, that is the line integral. Now we are coming to the surface. So again, surface means surface will be, this is a surface, so surface is in two variables. So now we will have what we call it as, so अगर आप देखो इस कप को मैं हवा में रखूं तो ऐसा नहीं है कि इसकी two surfaces है, बट अगर मैं इस कप को हवा में रख रही हूँ, so there are three coordinates. बट अगर मैं इस कप के ऊपर चले जाऊं तो कप को अगर आप टच कर रहे हो तो आप कप को 2D में टच कर रहे हो. अगर आप कप को दूर से देख रहे हो तो आप 3D में देख रहे हो. बट अगर आप कर्व को ऊपर से टच कर रहे हो, you are touching your curve with this palm of your hand. So this with this palm you are touching the cup. So you see this is 2D. So surface basically means 2D. So we will have surface integral now. But is it clear? Is the concept clear? Yes, ma'am. Okay, so let us go to the surface integral. जैसे हमने line integral में हमने क्या किया था, हमने region, हम इंटीग्रेशन में क्या करते थे, हम region को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते थे. Then what will be the area of this rectangle? So area of this rectangle is, so say this is f of x, and say the width of this rectangle is delta x. So area will be what? हम इस सारे, I mean this is the area of one rectangle, length into breadth. हम सारे rectangles के area को add कर देंगे, we will get the total integral. And अगर ये delta x becomes infinitely small, बहुत छोटा बन जाए, then your summation will change to integral and we will have fx dx. Similarly here, what we will do, we will break this complete surface into very small surfaces. We will break these small complete surfaces into very small surfaces. Let this delta S1, so you see, let this delta SK be one such surface. आपने पूरी सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिया है. जैसे वहां पे हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना रहे हैं. We are making small rectangles here, right? So now let us say, so suppose P is some point. Right, so let us say suppose we have a function f of x, y, z, right, and this is defined over a surface S, right? So what we did, we divide the surface S into smaller regions, and these regions will have some area. So let one region have area delta S1, another region has area delta S2, and so on. One of the region has area delta SK. So say this is that region, जिसका area कितना है, delta SK. अब हमने क्या किया, इस पे कोई point P ले लिया, right? इस पे हमने कोई point P ले लिया. अब obviously अगर आप इसको ऐसे देखो तो हमारे पास we will have the value of the function at this point P. So say P is xk, yk, zk. So we will have xk, yk, zk, the value of the function at this point P. जैसे हम वहां करते थे, अगर मैं रेक्टेंगल xi ले रही हूँ तो हम क्या कर रहे थे, f of xi delta xi. तो यहाँ पे डेल्टा xi आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ si. और अगर आप इस पूरे की समेशन ले लो, so this is nothing but the integral of this function f with respect to this surface si. And further, अगर ये delta si becomes infinite, is this very small, so this becomes ds. So this integral, so integral of f ds
So this will be the integral of this function over the surface S. बेटा is it fine? यहाँ तक clear है सबको? तो वहां पे हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था, हमें यहाँ पे हमने छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया, एक एरिया का हमने इंटीग्रल निकाल लिया, एंड देन वी टेक द सम ऑफ ऑल दोस एरियाज, आई मीन ऑल फॉर ऑल दोस एरियाज वी विल गेट द टोटल इंटीग्रेशन। और जैसे ही वो जो आपका छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बहुत छोटे हो जाएंगे, we will get the integration. So this is known as the integration with respect to the surface, or the surface integral over S. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now if you see, let us move further. अब अगर आपको याद हो, so basically now there is one more definition. Before I go, I tell you how to evaluate. How we evaluate surface integral. So that is the flux across the surface. Flux. So you see, suppose मेरे पास ये surface S है, हमने क्या किया, इसका small portion ले लिया, again जैसे हमने पहले किया था, right? Let the small portion has area ds. अब इस पे हमने एक point P ले लिया इस surface के ऊपर जिसका area ds है, और इस point के ऊपर suppose एक vector f लग रहा है, right? Then this f, and again अगर आपको याद हो जब हमने बात करी थी curves के साथ हम tangents की बात करते हैं, और रेक्टेंगल्स सरफेसेस के साथ हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, एंड सपोज इस पॉइंट P पे द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज n कैप। बेटा ऑल द थिंग्स आर क्लियर? सो सरफेस है एक, उस पे हमने छोटी सरफेस ले ली विद एरिया ds, उस पे हमने एक पॉइंट P ले लिया, P पॉइंट पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज n कैप। सो यू सी दिस P इज, उस P पे हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर ले लिया, दैट इज n कैप। अब ये जो फोर्स F है, the function F है, this vector, this will have some component in the direction of n, और हमें पता है जब मुझे कंपोनेंट निकालना होता है तो मैं कैसे निकालती हूँ, F डॉट n। बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब हमने क्या किया, ये जो कंपोनेंट आया F डॉट n, ये जो हमारे पास कंपोनेंट आया F डॉट n, इसका हमने सरफेस इंटीग्रल ले लिया। So f dot n का surface integral will be what? So this is some function. So this is some function. F dot n will be some function. हमने इसका surface integral लिया तो साथ में क्या आ जाएगा, ds. So you will have some integral over s. और आप देखो कई जगह पे वो डबल इंटीग्रल भी डाल रहे हैं. We are taking the double integral also. So double integral is nothing but the surface integral. जैसे line integral में we have single integration. Surface integral में we have double integration. Beta, is it fine? So this quantity is known as the flux of F over S. जैसे आपकी line integral में F dot dr was the work done, here the surface integral of F dot n over S, that is F dot n into ds, is called the flux of F over S. Beta, is it fine? यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. अब जैसे हमने लाइन इंटीग्रल में किया था, प्लीज ये सब कुछ बहुत ध्यान से समझोगे जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह करेंगे, ये सीधा आर्टिकल्स, ये सीधा कंसेप्ट में यूज करूंगी। सो यू सी, जैसे हमने वहां पे किया था टेंजेंशियल कंपोनेंट जो हमने लिया था, इफ यू रिमेम्बर, T डॉट ds, हमारे पास नॉट डॉट नहीं था, सो वी हैड TDS. So TDS was nothing but dr. So वहां पे S was not the surface integral, वहां पे S was the arc length. Line integral में TDS को हमने dr लिखा था. Beta, is it fine? If you remember, yes? Yes, ma'am. Right? तो यहाँ पे भी if you see जो हमारा n ds जो हो जाएगा, so where n ds, this n ds will be nothing but this ds, total derivative of, because यहाँ पे अगर आप देखो n, अगर हमारी जब हमारी कर्व थी, that was the tangent, right? और हमें पता है सरफेस के केस में we work with the normal, तो यहाँ पे n ds will be nothing but what? The total derivative of s. So we will get the total derivative of s. Is it fine? So what I want to say from here is that these two quantities, f dot n ds you write, or you write f dot ds.
they are the same thing. So जब भी मैं बात करती हूँ the component of f, you see this is component of f along ds. So जब भी मैं component की बात करती हूँ along the surface, by default it means the tangent. So you see tangent means by default it means the normal. So you see this is what the component of f in the normal along ds. Beta, is it fine? बच्चे clear है? Yes, ma'am. Right, so this is not important. I'll give you an easy way to solve this integral just, but otherwise this is not difficult also. अगर हम ये assume कर लें कि normal जो है मेरे x axis, y axis और z axis के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है, तो हमें पता है नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. So we know यूनिट नॉर्मल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप. ये हमने यूनिट नॉर्मल क्यों लिखा, बिकॉज हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है. सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, सो दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर. नाउ f इज व्हाट, f इज f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. तो अगर मैं f डॉट n निकालूं, अगर मैं f डॉट n निकालूं, सो व्हाट आई विल गेट f1 cos अल्फा प्लस f2 cos बीटा प्लस f3 cos गामा, राइट. सो द इंटीग्रल of this one, so you see f dot n ds हमने लिखा. so अभी क्या आया था, f1 cos alpha, f2 cos beta, f3 cos gamma into ds, right. So now I'll show you why we are writing this. So now you see this will be what, f1 cos alpha into ds, f2 cos beta into ds, f3 cos gamma into ds. ये यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको. f1 cos alpha into ds plus f2 cos beta into ds plus f3 cos gamma into ds. गर्ल्स यहाँ तक क्लियर है बेटा, इज इट फाइन? Yes, ma'am. अब देखो बेटा, आई विल टेल यू क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में कैसे चीजें हम इजी करते हैं. ये देखो, ये ना यहाँ पे थोड़ी सी टाइपो है, दिस इज y, दिस इज z. व्हाट वी डू, यू सी दिस इज सेम माय x एक्सिस. अगर टाइम खत्म हो गया तो वील कंटिन्यू जहाँ पे हम रुक जाएंगे वहां से मंडे को कंटिन्यू करेंगे. ये देखो मेरे पास सपोज कोई सरफेस है, दिस इज सम सरफेस इन 3D. हम रेक्टेंगल इसीलिए लेते हैं बिकॉज रेक्टेंगल्स आर इजी टू कैलकुलेट. हमने क्या किया परपेंडिकुलर. अब अगर आप देखो ये जो क्वांटिटी है ये 3D में है, इसमें x कंपोनेंट भी आएगा, y कंपोनेंट भी आएगा, z कंपोनेंट भी आएगा. हमने क्या किया, इस क्वांटिटी से परपेंडिकुलर गिरा दिए ऑन xy प्लेन. सो लेट मी जस्ट मेक अ नाइस, सो ओके, सो xy प्लेन. I will make a nice picture. So it's something of this sort. You see. So this was the object. हमें बेसिकली इसकी प्रोजेक्शन चाहिए इन xy प्लेन. तो हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर्स गिरा दिए. ये इसको मीट करेगा, पीछे वाला इसको मीट करेगा. बेटा, इज इट फाइन? तो हमारे पास एक सरफेस थी, यहाँ पे ये सरफेस थी, हमें इसकी प्रोजेक्शन चाहिए थी इन xy प्लेन. तो हमने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर से परपेंडिकुलर्स गिराना शुरू कर दिया. सो यू नो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि जो परपेंडिकुलर्स हैं they are perpendicular to z, they are parallel to z axis. All these perpendiculars are parallel to z axis, and obviously since it is a surface, तो जब आप perpendiculars गिराओगे ये जरूरी नहीं है कि यूनिक पॉइंट पे मीट करेंगे, they will meet the xy plane in different points. So again we will get some rectangular region, right? So obviously this rectangular region, say suppose this is a very small piece, so suppose this is a very small area, this is a very small surface ds. तो ऑब्वियसली अब यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन गिराई xy प्लेन में, तो ऑब्वियसली आई विल हैव सम चेंज इन x एंड सम चेंज इन y कंपोनेंट. मैं सिंस xy प्लेन में आ गई हूँ तो z खत्म हो गया. तो अगर मैं इसका एरिया देखूं, इस सरफेस का एरिया देखूं, तो एरिया ऑफ दिस सरफेस इज नथिंग बट dx dy.
isn't it? Isn't it? अगर मैं नीचे वाले सरफेस का एरिया देखूं तो एरिया ऑफ द डाउन सरफेस इज व्हाट, dx dy. गर्ल्स क्लियर है? बिकॉज एरिया इज व्हाट, Yes, ma'am. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. बट अगर आप देखो ये एरिया आपने कौन सी डायरेक्शन में लिया था? ये एरिया आपने z एक्सिस की डायरेक्शन में लिया है एक तरह से, बिकॉज जो आपके नॉर्मल्स हैं वो z एक्सिस के पैरेलल है. तो बेसिकली आपने ये जो एरिया निकाला वो आपने परपेंडिकुलर्स निकाले कौन सी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन पैरेलल टू z एक्सिस. बट हमें पता है z एक्सिस का तो डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है? cos गामा, राइट? तो इट मींस अगर मुझे एरिया का कंपोनेंट चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, तो दैट इज नथिंग बट cos गामा इनटू ds. बेटा इज इट क्लियर? बेटा यहाँ तक क्लियर है? मैम cos gamma कैसे लिया? रिपीट देखो कर दो प्लीज. हमने नॉर्मल क्या लिया था? व्हाट वाज नॉर्मल? cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप. तो अगर आप देखो नॉर्मल का z कंपोनेंट कितना है? cos गामा. तो एक तरह से हम z एक्सिस के पैरेलली तो आए हैं, और cos गामा क्या था हमारा? cos गामा वाज द एंगल व्हिच द नॉर्मल मेक्स विद द z एक्सिस. तो z एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट कितना है? cos गामा. तो एक तरह से अगर हम कहें हमने जो प्रोजेक्शन ली है वो z एक्सिस के पैरेलली ली है, तो एरिया की प्रोजेक्शन कितनी होगी? ds इनटू cos गामा. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. So yeah, from here if you see what is ds? What is ds? ds is dx upon dy over cos gamma. तो यहाँ से प्लीज आई एम राइटिंग ऑन दिस साइड, ds कितना बन गया? ds is dx upon dy. अब देखो cos gamma को क्या मैं लिख सकती हूँ? n dot k, because you see n वेक्टर क्या है? cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप. तो जब आप n का डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू k लोगे तो i डॉट k भी 0 हो जाएगा, j डॉट k भी 0 हो गया, सिर्फ k डॉट k इज 1 एंड आपके पास cos गामा आ जाएगा. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. तो यू सी यहाँ पे हमने क्या किया? बेसिकली यहाँ पे हमने ds को in terms of dx, तो ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वी विल बी फॉलोइंग इन द क्वेश्चंस. सो हमने क्या किया? ds को चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ x एंड y. बेटा क्लियर है? तो अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, तो यहाँ से क्या होगा? x और y में अब आपको इंटीग्रेशन करनी आती है. x और y में, ds में तो आपको आज तक इंटीग्रेशन किसी ने सिखाई नहीं थी, बट हमने dx dy में तो आपको इंटीग्रेशन सिखाई हुई है. तो हमने क्या किया? ds इज इक्वल टू, अगर आपने x और y में चेंज करना है तो आ जाएगा dx dy, नीचे क्या आ जाएगा? n डॉट k, जो ऊपर नहीं है, dx dy. x मींस x एक्सिस, y मींस y एक्सिस, z मींस k. अगर आपने इस इंटीग्रल को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग yz में चेंज करना है, तो हमें पता है हम प्रोजेक्शन ले लेंगे yz प्लेन में, तो नीचे क्या आ जाएगा? n डॉट i. बेटा इज इट क्लियर? गर्ल्स क्लियर है? और अगर आपको इसको चेंज करना है dz dx में, तो नीचे क्या आ जाएगा? n डॉट j. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. Okay, and so that's it. So this we will see in the course. So you see, so f dot n ds, so f dot n ds is what? f dot n dx dy. अब ds को suppose हमने xy में change किया है, तो dx dy over n dot k. और अब हमें पता है हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक रीजन आ जाएगा, so we will have r, because हम xy प्लेन में आ गए तो हमारे पास रीजन आ जाएगा. Is it clear? अच्छा, बिफोर आई स्टॉप, सो दिस वी नो सोलेनॉइडल वेक्टर हमने डाइवर्जेंस में भी किया था, जिसमें द डाइवर्जेंस इज 0. सो इफ यू रिमेंबर हमने क्या किया था? देयर वाज नो फ्लक्स लॉस, राइट? सो नेट लॉस इन द फ्लक्स इज 0. सो हियर आल्सो द सोलेनॉइडल वेक्टर, सो अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज सेड टू बी सोलेनॉइडल इन अ रीजन if its flux across every closed surface in a region is 0. So there is no change, right? So the flux is 0. Is it clear बेटा? So जिसके लिए ये जो इंटीग्रल है, so ये इंटीग्रल अगर आपका 0 आ गया, कौन सा इंटीग्रल? डबल इंटीग्रल f डॉट n ds.
If this integral becomes 0, then the quantity is known as solenoidal vector. Is it fine? कल क्वेश्चन Yes, करेंगे, ma'am. चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, उससे पहले जैसे हमने सरफेसेस को स्मॉल स्मॉल रीजन में चेंज किया, ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, अगर मैं मेरा जो वॉल्यूम है जिसको मैंने इंटीग्रेट करना है जिसके साथ, अगर मैं उसको स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम्स में ब्रेक कर दूं and I calculate this quantity f of pk, and pk is any one point on this volume into delta of vk, and take the summation. And now what I do, I take this limit delta vk as very small. So what will happen, this summation will change into integral and we will have function f, and this delta v will become dv. So this is known as volume integral. So अगर आपको integration about the volume करनी है तो हम volumes को small small parts में change कर देंगे. Beta, is it fine? So kal Yes, we ma'am. will take question on Monday, we will take questions on this, things will be more clear, but before that